Hello everyone. In my previous video, I was talking about arithmetic progressions in which I covered two things. One was nth term of an AP and in general introduction of that. And in the second video, I took some examples based on the nth term of AP. Now it's time to move to the next topic in this chapter, that is sum of n terms of an AP. What does it mean? Suppose we have an AP like this and we want to calculate the sum of this number. Here we have very simple AP having 5 terms and we want to calculate the sum of these terms. So the sum can be easily calculated like this. Here 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 6 plus 4, and this total is coming out to be 15. But if I ask you to calculate this up to 99, then again it is possible definitely, but it will take some time. Now this is a very simple AP. Now if I talk about this 5000 plus 5200, which example, this is an example which I took in the previous videos. इस तरह के क्वेश्चन में जब हमको सम निकालना है तो अब जो है ये आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हमको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। वी विल टॉक अबाउट द जनरल टर्म्स। एज आई टोल्ड यू, लेट एन AP in which the first term is a, then second term is a plus b, a plus 3d, a plus 2d, then a plus 3d, and so on. Third term will be a plus 2d till a plus n minus 1d. So these are the terms of that AP. Now we want to calculate the sum of these three. So sum of n terms of दिस AP। इस AP में आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। लेट अस कॉल इट S। वी आर यूजिंग n टर्म्स here we have total n terms, so we are using Sn for sum of n terms. S is capital here. So if we look at this, we have to add. So the first term is a, then second term is a plus d, third term a plus 2d, and so on. This will go on till second last term will be a plus n minus 2d, and the last term will be a plus n minus 1 into d. Last term is nth term। जो आखिरी टर्म होगी उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। तो ये सम हमारे पास आएगा। नाउ टू कैलकुलेट दिस वी हैव टू डू one important thing, that is we will rewrite this sum but in opposite direction, means we will start from backward direction। जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना के लिखेंगे। तो ये आएगा a plus n minus 1 into d, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म। सेकेंड लास्ट टर्म जो है वो आपकी सेकेंड टर्म बन जाएगी, जिसमें आप लिखोगे a plus n minus 2 into d, then so on till a plus d and last term is a। इसी सीक्वेंस को जो AP थी उसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया इन फॉर्म ऑफ सम। अब हमको जो सम निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो एडिंग दिस टू व्हाट वी कैन गेट, वी आर एडिंग दिस टू मींस LHS विल बी एडेड एंड RHS will also be added। So here we are getting Sn plus Sn in LHS, and here at RHS what we are getting, the first terms are this। So the consecutive terms will be, respective terms will be added। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। a plus n minus 1 into d, ये आपकी फर्स्ट टर्म आएगी सम के अंदर। सम के अंदर सेकेंड टर्म आएगी a plus d। a plus d is the second term in the first sequence, then in second sequence it is a plus n minus 2d, and so on। This will go on till last, that is a plus here we have a plus n minus 1 into d, and the last term here is, this is in first sequence the last term is a plus n minus 1 into d, and in second sequence the last term is a। So this we are getting here।
So when we look at this whole result, if we simplify this Sn and Sn, it makes it 2 times of Sn. अगर आप इसको देखेंगे तो a प्लस a यहाँ पर 2a हो जाता है प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये एक टर्म आपके पास आई। सेकेंड, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये a प्लस a 2a होगा और n माइनस टू डी प्लस डी, आप इनको जब d कॉमन लोगे तो ये आएगा n माइनस टू प्लस वन इंटू डी, जो कि नथिंग बट n माइनस वन इंटू डी ही आता है। तो इस तरीके से जब आप सारी टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पर n माइनस वन इंटू डी एज इट इज आएगा, एंड सो ऑन टिल लास्ट अगेन इट इज कमिंग 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप इसमें RHS को देखें, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मीन्स यही टर्म आपकी बार बार रिपीट होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी बार रिपीट होगी। हमारे पास कितनी टर्म्स थी एपी में, n टर्म्स, तो यहाँ पर ये सम जो निकाला है वो भी कितने टर्म्स का है, n टर्म्स का। सो नाउ वी विल यूज दिस रिजल्ट हियर, सो आई एम राइटिंग इट हियर, 2 times of Sn from here is coming out to be, there are total this expression n times, so we can write them addition n times। इन टर्म्स को n टाइम्स प्लस करना है तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में n इंटू ये लिख सकते हैं, n इंटू वन ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम इस 2 को इधर शिफ्ट कर दें RHS में, तो Sn जो आएगा वो आएगा n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। So this is the required result which we will use to calculate the sum of first n terms of an AP. So this is the formula which we are going to solve the question of addition of terms of an AP. Now suppose someone is needing the sum of 2 terms. If we look at this, the formula is very simple, Sn is equals to n by 2 multiplied with 2a plus n minus 1 into d. So this is the derivation of this. Now we will discuss about this formula in different ways. Like suppose I need, let me write it again, Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the relation. Now when we look at the bracket, here we have 2a. अगर आप इस 2a को ब्रेक कर दें a प्लस a में, तो ये आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप इसमें ये देखेंगे कि ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जो टर्म है ये आपकी जानी पहचानी है, जो हमने कल पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो ये था कि ये जो है nth टर्म होती है। अगर कोई फाइनाइट एपी है जिसमें nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म होती है, तो इसी an को हम लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, दैट इज स्मॉल l। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आती है, तो हम इसी फॉर्मूले को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर लास्ट टर्म पता होगी तो हम ये यूज कर लेंगे, nth टर्म पता होगी तो हम ये यूज कर लेंगे, और जब हमको सिंपल सीरीज दी हुई है तो हम डायरेक्टली ये जनरल जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर a is first term, d is the common difference, and n is the number of terms for which we want to calculate the sum of terms. So this is the general formula, Sn is equals to n by 2 multiplied with 2a plus n minus 1 into d, which can be reconverted into n by 2 a plus n by 2 a plus n. Here if the last term is known, then we can replace this an with l. So this is it. So just now we have discussed about the sum of n terms of an AP, that is we have a relation here, Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Now by using this, if we talk about the different number of terms, suppose if we are writing S1, what this will turn out to be, let us check. We have to replace this n with 1 in the whole formula, so n by 2 means 1 by 2, then 2a plus 1 minus 1 into d. Here this is 0, d part, so what we will get here, S1 is
1/2 into 2a. So what we are getting a, and it is quite obvious. यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म थी तो उसकी वैल्यू a ही आएगी, उसको आप सिंपली a लिख दो, a1 लिख दो, या फिर उसको सम ऑफ वन टर्म लिख दो, तो यही आता है. When we talk about S2, I am writing the result here. हमने S1 निकाला तो ये आता है A, जो कि 1/2 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. इसको जब आप सोल्व करते हो तो 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल होता है तो हमारे पास A निकलता है. If we talk about S2, what we will get? S2 means 2/2 here, n/2, 2a plus here 2 minus 1 into d. So what we are getting, this is 1 into bracket 2a plus what we are getting here, d, which is nothing but 2a can be written as a plus d. 2a can be written as a plus d. So this is first term and this is second term. तो यहाँ से S1 जो था वो A1 के बराबर आ रहा है, और S2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, A1 प्लस A2 के. और यही हम सम निकालते हैं. अगर हमको दो टर्म्स का सम निकालना है तो किसके इक्वल आता है, A1 और A2 के. नाउ कम टू थर्ड. अगर S3 निकालना है तो ये कितना आएगा, 3/2 2a प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू डी आएगा, 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, विच इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आता है 3/2 इंटू 2a प्लस 2d. इन दोनों में से 2 जो है ये कॉमन लेके हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 3 टाइम्स a प्लस d, विच इज नथिंग बट व्हाट वी कैन राइट हियर 3a प्लस 3d. तो ये कुछ भी नहीं है, आप 3a को a प्लस a लिख दें, d को भी आप लिख दें d प्लस 2d. 3d कैन बी रिटन एज d प्लस 2d. नाउ क्लियरली फर्स्ट टर्म इज a. If we combine 1a and d, we get second term, and if we combine 1a and 2d, we get third term. So this is nothing but a1 plus a2 plus a3. So this is how we work on this formula. अगर हमको पहली तीन टर्म्स का सम चाहिए तो हम डायरेक्टली S3 निकाल सकते हैं by using this relation. So this is how we find out. Now suppose we want common difference by using this. What we will do? हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है. आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, A1 पता है, दोनों का सम पता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेकंड टर्म अगर निकालनी है, अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता हो तो S2 माइनस S1 निकालोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी. जब आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ दिस, वेयर वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ n as 1 2 3. नाउ लेट अस कम टू अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, दैट इज like if we want to calculate sum of n natural numbers. Here this topic I started with the same question, like if I want to calculate the sum of n natural numbers, so this will be something like till n natural है तो लास्ट वाला नंबर n आएगा. हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्लियरली वी नीड Sn here, that is n/2 into 2a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पर हमको a और d की वैल्यू रखना है, n तो है ही n. So here clearly n/2, the value of a is first term is 1, so 2 into 1 plus n minus 1 into d. Common difference is 2 minus 1, so it is 1. So from here what we are getting, n/2 is 2 plus n minus 1. So when we look at this, we are getting a very simple result, n/2. When you try to solve this, this is 2 minus 1 is 1, so n plus 1. So if we rewrite this and simplify, we are getting Sn is equals to n into n plus 1 by 2. What does it mean? Suppose by using this relation, I need 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. ये सम हमको निकालना है.
sum of first 5 terms. So what I have to do is S5 we want, 5 terms are there, so S5. So value of n is 5 into 5 plus 1 upon 2, that is 5 into 6 upon 2. If we divide 6 by 2 we get 3, so the sum is coming out to be 15. तो इस रिलेशन का यूज करके हम कितने भी नंबर का सम निकाल सकते हैं. सपोज इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द सम ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स टिल 400. अगर हमको 400 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो दिस इज नथिंग बट S400 which we will use the relation here. What is the relation? N into n plus 1. So we write 400, total number of terms is 400 into 400 plus 1 divided by 2. So here what we get? 400 multiplied with 401 upon 2. So if we divide by 2 we get 200. So from here what we are getting is 0200. So this is the answer, which in generally if we try to add it will take many hours. आप इसको जब ऐड करना चाहोगे तो ऐड तो हो जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा. इसलिए by using this sum of n terms of natural number formula we can directly calculate this. तो ये एक रिलेशन होती है जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं. Now moving further in the same topic, let me take one more relation here that I want to derive. अगर मुझे कुछ एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं. अगर मुझे फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स के सम में से अगर मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के सम को माइनस करना है, इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, आई वांट टू सब्ट्रैक्ट सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर फ्रॉम द सम ऑफ 6 नेचुरल नंबर. क्लियरली इसका आंसर 6 आएगा क्योंकि ये 1 to 5 जो होगा ये इसके सम से माइनस हो जाएगा. What does it mean here in this sequence? This is A1, A2, A3, A4, A5 and A6. Means the answer is coming out to be A6. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रिलेशन हो सकता है सम ऑफ S6, ये हो गया सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स एंड हियर व्हाट वी आर गेटिंग A6. तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, दैट इज इफ यू आर टेकिंग दिस 6 एज n. अगर हम 6 को n लेंगे तो ये क्या आएगा Sn माइनस, अगर 6n है तो 5 क्या हुआ n माइनस 1, तो n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू A6. यहाँ पे ये n था, ये n माइनस 1 है तो ये क्या होगा n. दिस इज कमिंग आउट टू बी an. तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आता है जो आप डिराइव भी कर सकते हैं. अगर आप Sn के फॉर्मूले में n माइनस 1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके आप जब Sn माइनस 1 करोगे तो आपके पास डेफिनेटली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा जो कि an होता है. तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया. वो इंपॉर्टेंट रिलेशन कैसे यूज करेंगे, इसकी यूटिलिटी क्या है, लेट मी कम टू दैट पॉइंट. आप इसमें जैसे फर्स्ट टर्म है इसमें n की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करेंगे. जैसे 1 फर्स्ट टर्म अगर हमने निकाला तो यहाँ पे S0 मतलब वो कुछ है ही नहीं, 0 टर्म तो होती ही नहीं है. फर्स्ट टर्म होगी कम से कम नेचुरल मतलब स्टार्टिंग काउंटिंग. तो आप जब A1 निकालोगे तो वो सिंपली किसके इक्वल आएगा, A1 अगर निकालना है तो सिंपली आपका S1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि एक ही टर्म होगी तो सम ऑफ टर्म्स भी वही होगा और फर्स्ट टर्म भी वही होगी. अगर आपको A2 निकालना है तो बहुत आसान है, आप इसमें n की वैल्यू 2 रख दें तो वो आएगा S2 माइनस S1. अगर आपके पास सम ऑफ 2 टर्म्स है और उसमें से आप सम ऑफ 1 टर्म माइनस कर दें तो ये आ जाता है. अगर आपको A3 निकालना है तो आप सिंपली इसमें वैल्यू रख दोगे S3 माइनस S2. सम ऑफ 3 टर्म्स निकालेंगे उसमें से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. ऐसे ही चलता जाएगा. तो an जो होगा वो Sn माइनस Sn माइनस 1 के इक्वल आएगा. तो ये एक रिलेशन है जो हमको कभी कभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी यूजफुल है. तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आता है जिसमें an और Sn का रिलेशन हमको दिया गया है.